friends, once again this is Sachin Ingde would like to welcome you on your favorite YouTube channel. So in the previous lecture we have completed the theory related to speed, velocity and acceleration. At the same time we have studied instantaneous speed, instantaneous velocity and instantaneous acceleration. We have also tried to derive the formula of equation of motion considering what we say integration and derivation. Okay. So in this video we are going to move forward by taking the engineering problems. Okay. We have also taken two basic problems in the previous lecture, but now we are going to solve the engineering problems. So let us take first problem. A car is moving in a straight road whose equation of displacement is given by x is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube, where x is in meter and t is in second. He had asked us to find the velocity and acceleration at starting point, acceleration when the velocity is 0, displacement in third second, distance travel after 3 seconds. Okay, so these are the questions which have been asked in our example. So let us try to solve. First of all, taking the equation which is given to us as x is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube. So this is the equation of displacement which has been given to us. Okay, and he has asked us to find out the velocity and acceleration. Okay, so we have studied in the previous lecture, if equation of displacement is given to us, then on derivating the equation of displacement we can get velocity, and on derivating the equation of velocity we can get acceleration. So considering the same thing in mind, let us derivate first to find out the velocity, which is dx by dt. So d by dt of x is 12t plus 3t square minus 2t cube. So our velocity would become 12 plus 6t minus 6t square. Okay, this is the equation of velocity. Okay, now for finding out the acceleration we will have to derivate the velocity equation. So acceleration would be dv by dt, which would come as d by dt of 12 plus 6t minus 6t square. Therefore acceleration is equal to 0 plus 6 minus 6t. Okay, oh sorry, minus 12t. So we have got all the equations related to velocity and acceleration. Now our first question is, find the velocity and acceleration at starting. At starting means at initial point, and you know at initial point the time is always 0. So he had asked us to find the velocity and acceleration at t equal to 0 second. So for finding the velocity we will have to put the value of t equal to 0 in velocity equation. So v would become equal to 12 plus 6 into 0 plus minus 6 into 0 square, which would come as 12 meter per second. Similarly, for finding the acceleration we would put t equal to 0 in the equation of acceleration, which is 0 plus 6 minus 12 into 0, which would come as 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकल गया एट स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा टाइम कितना रहेगा, 0 सेकंड, इसलिए t इक्वल टू 0 सेकंड डाल दिया हमने इक्वेशन. अब नेक्स्ट बात उसने हमें पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0. उसने बोला हमें एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो जब आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है. ओके, वेलोसिटी 0 है इसका मतलब बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, बराबर. वेलोसिटी 0 है
इसका मतलब ये जो v का इक्वेशन है विच इज़ 12t और ये कितना आने को होना, इक्वल टू 0 आने को होना, बराबर। और तब हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड, अपना एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। 12 प्लस 60 माइनस 60 स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकालने के बाद में 2 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप देखते होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको ऐसे लिखते आता है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी माइनस 2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर टी माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर टी प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर। देयरफॉर टी इक्वल टू 2 या फिर टी इक्वल टू माइनस 1। अब टी इक्वल टू 2 ये क्या है, सेकंड है, टाइम है। टाइम काय में आया, सेकंड में आया, 2 सेकंड। टाइम कभी माइनस में आता है नहीं, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे नहीं, इसको इसीलिए हम कंसिडर करेंगे सिर्फ टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है, बराबर है। अब वेलोसिटी 0 है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 नहीं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इसके ऊपर प्रॉब्लम लेके, और हमने ये देखा था कि वेलोसिटी अगर 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, कंपलसरी नहीं है। ओके, देयरफॉर इसमें भी हम प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए, t इक्वल टू 2 सेकंड काय में डालेंगे, एक्सीलरेशन के इक्वेशन में डालेंगे। तो a इक्वल टू 6 माइनस 12 इंटू टी की जगह 2, इसका आंसर आएगा माइनस 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं आया, पर एक्सेलरेशन निगेटिव आया। इसका मतलब क्या, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है क्या, नहीं, बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब रिटार्ड हो रही है बॉडी। डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन यानी बॉडी की एक्सेलरेशन कम होना। ओके, और ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन कम होती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर अभी दूसरा नाम हमने देखा डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया भाई हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट। चलिए अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकंड। इसका मतलब तीसरे सेकंड पे वो बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकालना है हमें। ओके, तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास में है, x इज इक्वल टू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। इसके अंदर t की वैल्यू विच इज़ 3 सेकंड डाल देते हैं, तो इट वुड कम एज 12 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब विच कुड कम एज 9 मीटर। तो देख सकते हैं आप, हमें डिस्प्लेसमेंट तीसरे सेकंड पे मिल गया विच इज़ 9 मीटर। तो यह हमारा तीसरा सवाल भी ख़त्म हो गया। अब हम चौथे सवाल के ऊपर जाते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर 3 सेकंड। इसका मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है आफ्टर 3 सेकंड, या फिर थर्ड सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने, वो हमें निकालना है। ओके, तो अभी ये फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एक टेबल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टाइम और यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी t इक्वल टू 0 सेकंड पे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और t इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है।
इसके अंदर एट टी इक्वल टू ज़ीरो की वैल्यू जब डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। लिख लिया ज़ीरो, 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, विच वुड कम एज 2 प्लस 3 माइनस 2, 3 मीटर। तो पहले सेकंड पे वो बॉडी कितना मीटर खिसक गई, 3 मीटर खिसक गई। समझ में आ रहा है? ओके, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो गया। अब हम एट टी इक्वल टू 2 सेकंड डालते हैं तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब। ये अब अगर कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये आएगा 20 मीटर। ओके, तो दूसरे सेकंड पे बॉडी कितना मीटर खिसक गई, 20 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 मीटर। अब आप पूछेंगे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, पर भाई इक्वेशन तो हमें डिस्प्लेसमेंट का दिया है, x इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्टेंस कैसे निकालें वो हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब हम फाइनली हम क्या आते हैं, हमारे फाइनल पॉइंट पे आते हैं विच इज़ थर्ड सेकंड, और इसके ऊपर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो एट टी इक्वल टू 3 सेकंड x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू आती है 9 मीटर। भाई अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 20 और 20 के बाद में 9 मीटर। अरे भाई 20 के बाद में तो आगे बढ़ने को होना था, यहाँ पे 9 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है, एक काम करते हैं, ये मतलब जानने के लिए हम पहले डायग्राम निकालते हैं। ये मतलब जानने के लिए हम पहले डायग्राम निकालते हैं। चलो ये पार्ट में डायग्राम आ जाएगी। देखिए बॉडी उसने पहले ही कहा है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 है भाई, बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, बराबर है। जब वो बॉडी काय में जा रही, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये हमारा स्ट्रेट पाथ है। ये स्ट्रेट पाथ पे भी तो कंटिन्यू जाएंगी वो, बराबर है। समझ में आ रहा, कंटिन्यू आगे बढ़ने वाली है स्ट्रेट पाथ पे। अब हम कौन से सेकंड पे है, फर्स्ट सेकंड पे है। पहले सेकंड पे जब गए t इक्वल टू हमारा 1 सेकंड जब हो गया तो बॉडी ने कितना ट्रैवल किया, 3 मीटर ट्रैवल किया, बराबर है। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो बॉडी कितना मीटर ट्रैवल कर लिया, 20 मीटर। बाप रे बाप, तो दूसरे सेकंड पे बहुत दूर चली गई बॉडी। t इक्वल टू दूसरे सेकंड पे x कितना आ गया, 20 मीटर। अब इसके भी आगे बॉडी जाने को होना था, बराबर है। पर भाई जब 3 सेकंड हो गए तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 9 मीटर ही। इसका मतलब बॉडी यहाँ पे है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट विच इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वो कितना है भाई, 9 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फर्स्ट सेकंड के लिए इतना, दूसरे सेकंड के लिए इतना, और तीसरे सेकंड के लिए इतना ही। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, 9 मीटर। पर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, हमें पूछा डिस्टेंस। हमें पूछा डिस्टेंस। इसका मतलब जब बॉडी ने शुरू किया यहाँ से और जब बॉडी पहुँची यहाँ पे, जब टाइम आया 3 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ ट्रैवल। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक रहता है, जितना उसने पाथ ट्रैवल किया वहाँ तक। तो पाथ उसने कौन सा लिया जाने के टाइम पे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में वो इधर से इधर आया। आई थिंक ये आपका पिछले वीडियो में हो गया है थ्योरेटिकल कंसेप्ट।
अभी हम प्रॉब्लम लेके देख रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का हो गया, फिर बाद में आप इधर आए तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना वो आपको निकालना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से थर्ड सेकंड तक का 9 मीटर, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना ही है, बराबर। तो बचा हुआ कितना है 11 मीटर, 20 में से 9 गए तो 11 मीटर बच गए। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई तो उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, और फिर बाद में जब यहाँ पे आई तो उसने और 11 मीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 11 विच वुड कम एज 31 मीटर। तो ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस। ओके, अब आप बोलेंगे भाई सर अगर उसने हमें दिया 40वें सेकंड पे निकालिए, तो क्या फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ऐसा करते करते क्या 40वें सेकंड पे जाए? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे वक्त क्या करने को, तो ये निकालने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपका भी बराबर है कि भाई अगर सवाल पूछा गया कि भाई 240 सेकंड पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालिए, तो क्या आप हर एक सेकंड पे निकालते बैठेंगे? 240 सेकंड यानी कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड पे निकालिए, दूसरा सेकंड पे निकालिए, तीसरा सेकंड पे निकालिए, ऐसा करते करते 240 सेकंड तक आप जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इनिशियल टाइम जो है उसके ऊपर आपका कितना डिस्प्लेसमेंट निकला वो निकाल लीजिए। इनिशियल पॉइंट पे आपका, इनिशियल सेकंड पे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट निकला वो निकाल लीजिए। फिर बाद में एक काम कीजिए, वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कीजिए इक्वल टू 0 पे, और तब आप निकालिए कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा आपको वेलोसिटी 0 आने पे, और वो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब फाइनल स्टेप आप निकालिए, जब आप फाइनल टाइम आपको दिया, फाइनल सेकंड आपको दिया, तो वो सेकंड पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है वो निकाल लीजिए। तो आपको ये 3 बातें निकल गई तो आपको डिस्टेंस आसानी से निकल सकेगा। कैसे? वही यहाँ पे मैं हूँ तो t इक्वल टू कुछ तो भी सेकंड रहेगा, 0 सेकंड ले लीजिए, इनिशियल पॉइंट है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ तो भी है, 0 नहीं है, कुछ तो भी है। फिर बाद में जब वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गई तो टाइम कितना लगा, तो ये आ जाएगा हमारे ये टाइम। ओके, जब वेलोसिटी कितनी है 0 है। अब जो आपको फाइनल टाइम पूछा है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना आया वो देख लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा आया, ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आया, तो इसका मतलब आप राइट जा रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट से कम आ गया तो इसका मतलब आप लेफ्ट जा रहे हैं, और वो हिसाब से आप फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? लगे तो हम और एक प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपके कंसेप्ट्स अभी क्लियर हो जाए, यही बातें लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 8 second when the equation of displacement is given by x is equal to 3t cube minus 6t square plus 9t plus 5, where x is in meter and t is in second। तो भाई जो हमें प्रॉब्लम चाहिए था वो हमें मिल गया। तो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन उसने दिया, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 5। तो अभी जैसा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो वो हिसाब से हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, तो आएगा 3t स्क्वायर
माइनस 12t प्लस 9, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया। ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, इसका मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन को डेरिवेट करो, ये आ जाएगा 6t माइनस 12 प्लस 0। ओके, तो हमारे पास में तीन इक्वेशन विच इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप बोलेंगे सर इसका काम नहीं है, काय को निकाल के रख दीजिए, कभी भी काम आ सकता है। तो हर बार अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया तो हमें ऐसा करके रखना पड़ेगा। ओके, अभी उसने क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। ओके, t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो 0 और 8 के बीच में जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी, हमने क्या बोला था, इनिशियल टाइम लीजिए, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकाल लीजिए। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड x इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग, 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 प्लस 5 विच कम्स टू बी 5 मीटर। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड x इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पहले इनिशियल सेकंड लिया, इनिशियल टाइम लिया। अब ऐसा टाइम जहाँ पे वेलोसिटी 0 है वो निकालेंगे। ओके, तो वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो आएगा 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 9 विल बिकम इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, 3 कॉमन निकाल लिया तो। ओके, अब क्या, अब इसको सॉल्व करने के बाद में t माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बराबर है। देयरफॉर t इक्वल टू 1 या फिर t इक्वल टू 3 ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब पहले सेकंड पे भी वेलोसिटी 0 आएगी और तीसरे सेकंड पे भी वेलोसिटी 0 आएगी। माइनस आंसर किसी का नहीं आया, इसका मतलब पहले सेकंड पे भी वेलोसिटी 0, तीसरे सेकंड पे भी वेलोसिटी 0। हे भगवान, समझ में आ रहा। तो एट t इक्वल टू 1 v इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 3 v इक्वल टू 0। ओके, तो पैनिक होना नहीं है। हमें पहले सेकंड पे वेलोसिटी 0 आ गई, तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 0 आ गई। ओके, ये निकालना था कि भाई वेलोसिटी कब 0 0 है। ओके, अभी क्या, वेलोसिटी 0 है पहले सेकंड पे, वेलोसिटी 0 है तीसरे सेकंड पे, पर वो टाइम पे वो जो सेकंड है, पहला सेकंड और तीसरा सेकंड, तब तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया वो फाइंड करेंगे हमें अभी। ओके, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये काय में डालेंगे, ये इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड x इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 9 मीटर। तो पहले सेकंड पे जब वेलोसिटी 0 है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया 9 मीटर। अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे जब तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 0 है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर लिया। ओके, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड x इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 5, तो ये हो गया 5 मीटर। ठीक, तो भाई ये तो हो गया हमारा दूसरा काम, यहाँ तक हो गया हमारा दूसरा काम। तीसरा काम वापस से एक बार देखिए, t इक्वल टू 0 सेकेंड यानी कि इनिशियल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, और लास्ट का क्या है, फाइनल पॉइंट पे। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो x इज इक्वल टू
एट टी इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 का क्यूब माइनस 6 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 8 प्लस 5। ओके, इसका आंसर आता है 205 मीटर। ओके, तो एट एक्स इज इक्वल टू एट टी इक्वल टू 8 सेकंड एक्स इज इक्वल टू 205 मीटर। ओके, ये ज़रा डायग्राम निकाल के देखते हैं। देखिए, तो ये मेरा पॉइंट है, चलिए ये मेरा पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट पे जब t इक्वल टू 0 सेकंड, इसका मतलब ये मेरा इनिशियल टाइम है, यहाँ पे मैंने देखना चालू कर दिया, पर तब तक बॉडी ने x मीटर कवर कर लिया था। इसका मतलब पीछे से यहाँ से चालू किया बॉडी ने चलना, कहाँ पे तो भी यहाँ से चालू किया बॉडी ने चलना, पर भाई उससे हमें लेना देना नहीं, हमने देखना यहाँ से चालू कर दिया, और तब डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 5 मीटर। अब क्या, अब वेलोसिटी जब 0 है वो टाइम पे कितना सेकंड आया, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया 9 मीटर। तो t इक्वल टू 1, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, बराबर है। हमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, 7, 8, 9। इसका मतलब डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 मीटर ट्रैवल कर लिया उसने, 4 मीटर डिस्टेंस। यहाँ से थोड़ी गिन रहे हैं हम, ये पॉइंट से नहीं गिन रहे हैं हम, ये पॉइंट से गिन रहे हैं ना, तो हमारे लिए ओरिजिन ये रहेगा ना। भले ही उसने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर कर लिया, पर ओरिजिन तो यहाँ पे हम जब कंसिडर करेंगे तो 0 रहेगा ना हमारे लिए। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर होने के बाद में एक्चुअल में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 5वें मीटर से चालू करने के बाद में 4 मीटर कवर कर लिया। समझ आ रहा है। अब क्या, अब वेलोसिटी और एक है जहाँ पे 0 है, और वो टाइम कितना है 3 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से आया भाई डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, इसका मतलब यहाँ पे आ गया, वो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 है। इसका मतलब यहाँ से चले भाई और यहाँ पे वापस आ गए। हमें डिस्टेंस से लेना देना है, पर अभी तो जब यहाँ से यहाँ पे गया 4 मीटर कवर कर लिया उसने ऑलरेडी। यहाँ से जब यहाँ पे आया तो कितना और कवर कर लिया, 1, 2, 3, 4 मीटर और कवर कर लिया। समझ में आ रहा है। अब क्या, अब t ये तो हो गया 1, 2, 3, ये कंडीशन हमारे खत्म हो गए। अब ये बाकी है t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 205। इसका मतलब यहाँ से बहुत स्पीड से निकला और यहाँ तक पहुँच गया। कब, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया 205 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसने। सॉरी, डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसने 205। तो एक्चुअल में उसने, हम अभी यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 205 किया, पर डिस्टेंस कितना किया 205 नहीं। भाई ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 है, ये एंड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 205 है। अरे पर डिस्टेंस 0 तो यहाँ पे है ना हमारा, भले ही ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, पर 0 तो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया 205 माइनस 5 विच कम्स आउट टू बी 200 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का तीसरे सेकंड से 8वें सेकंड तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। पर हमें तीसरे सेकंड से 8वें सेकंड तक का पूछा क्या, नहीं, हमें पूछा गया है 0 से 8वें सेकंड तक का। तो 0 से पहले सेकंड तक 4 मीटर, पहले सेकंड से तीसरे सेकंड तक 4 मीटर, और तीसरे सेकंड से 8वें सेकंड तक 200 मीटर। तो यहाँ पे आएगा प्लस 200 और ये आ जाएगा 208 विच इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी। ओके, तो वापस से एक बार बोलता हूँ,
जब भी आपको अगर पूछा गया कि डिस्टेंस निकालिए, तो सबसे पहले इनिशियल टाइम लीजिए और उसके ऊपर डिस्टेंस निकालिए। फिर बाद में ऐसा टाइम लीजिए जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें ज़ीरो को इक्वेट करना पड़ेगा और उस पे से टाइम निकालना पड़ेगा। ये केस में हमें दो टाइम मिले जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो आई, बराबर है। तो उसके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए हमने, ओके। और फाइनल टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट पूछा, वो निकाल लीजिए। फिर बाद में फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और फिगर से डिस्टेंस निकालिए। ये है इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स। टफ है, थोड़े से टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो और थोड़े से प्रॉब्लम लेने वाले हैं हम, पर भाई इसके बाद में प्रॉब्लम्स और टफ होने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन कॉल मी। मैं हर बार मेरे स्लाइड के पहले और स्लाइड के आखिरी में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मैंने मेरा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।